قوم کی واحد امید ارشد ندیم جیلن تھرو کا فائنل ٹاکرا سنسنی خیز مقابلہ آج رات 11:25 پر کھیلا جائے گا۔ جی آپ کو بتائیں قوم کی واحد امید ارشد ندیم جیلن تھرو کا فائنل ٹاکرا سنسنی خیز مقابلہ آج رات 11:25 پر کھیلا جائے گا۔ قوم کی واحد امید ارشد ندیم جیلن تھرو کا فائنل ٹاکرا آج ہوگا۔ سنسنی خیز مقابلہ آج رات 11:25 پر کھیلا جائے گا۔ ارشد ندیم سمیت 12 ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے۔ جنوبی پنجاب کے عوام ارشد ندیم کے لیے دعا گو ہیں۔ ارشد ندیم پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قوم کی واحد امید ارشد ندیم جیلن تھرو کا فائنل ٹاکرا سنسنی خیز مقابلہ آج رات 11:25 پر کھیلا جائے گا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم مغل سے۔ ندیم بتائیے گا۔ ضلع خانے وال کا فخر پاکستان کا ہیرو ارشد ندیم آج جیلن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں پیرس میں اولمپیس میں آج مقابلے میں جا رہے ہیں۔ تو بات کی جائے ان کی خصوصی دعاؤں کے حوالے سے تو خانے وال ہو، گرد و نواح ہو، وہاں پر چھوٹے بچے ہوں، بڑے ہوں، سبھی ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو مزید پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خالد محمود اظہر صاحب، ان سے جانیں گے اس حوالے سے۔ ارشد ندیم صاحب جن کا تعلق ہمارے ضلع خانے وال سے ہے، ضلع خانے وال کا فخر ہیں اور پوری دنیا میں وہ خانے وال کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں کامیاب اور سرخرو فرمائے۔ تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے۔ ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا، ہمارے خانے وال کا نام روشن ہوگا، ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا۔ ہمارے ساتھ نوجوان جو موجود ہیں خصوصی دعائیں مانگ رہے ہیں ارشد ندیم کے لیے، تو کیا کہیں؟ جی وہ ہمارے خانے وال کا ایک عظیم فخر اور ہم سب یہاں دعا اس کے لیے جمع دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا کامیابی عطا فرمائے۔ وہ ہمارے خانے وال کا ایک عظیم اور عظیم بہادر کھلاڑی ہے۔ جی عظیم بہادر کھلاڑی ہے، اس کی کامیابی کے لیے ننے بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ ارشد ندیم فائنل راؤنڈ میں کامیاب ہوں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں مشہور کریں۔ اور یہی حال ہمیں خانے وال کے گرد و نواح کے علاقوں میں دکھائی دیتی ہے کہ ہر شخص ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ جی ارشد ندیم پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ کوچ رشید احمد ساقی بھی پرامید، کہا کہ اس مرتبہ فل ٹریننگ دی ہے۔ ارشد ندیم پاکستان کا نام روشن کرے گا، کوچ رشید احمد ساقی بھی پرامید، کہا کہ اس مرتبہ فل ٹریننگ دی ہے۔ اس حوالے سے ارشد ندیم کے کوچ کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم ارشد ندیم کے لیے پیرس اولمپک میں کمپٹیشن کے لیے دعا گو ہے اور انشاءاللہ 2024 کا اولمپک جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ارشد ندیم ون کرے گا اور پیرس کی فضاؤں میں پاکستان کا جھنڈا بلند ہوگا اور پاکستان کا قومی ترانہ پیرس کی فضاؤں میں گونجے گا اور پاکستان کو 14 اگست کا ایڈوانس تحفہ ارشد ندیم انشاءاللہ دے گا۔ دوسری جانب بات کریں حاصل پور موضع خیر و دیہات دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے متعدد بستیاں پہلے ہی دریائے کٹاؤ کی نظر ہو چکی ہیں۔ اس پر مزید جانتے ہیں ملک عبدالرشید سے، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور کے نواحی گاؤں موضع خیر الدے میں موجود ہوں، جہاں پر دریائی کٹاؤ جاری ہے۔ اہل علاقہ جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ساڈا بڑا نقصان ہو گیا، ساڈا 335 گھر ساڈا ڈھا پیا ڈھا ساڈی لگی کھلی، نکے نکے ساڈے بال ہیں، ساڈے مال ہیں، ساڈی تھاراں کائے نہیں، ساڈی مدد کرو تساں۔ یہ ساڈی مدد ساڈی وسطی جاندی خیر دے ساڈی وسطی جاندی پئی ہے، سارا ساڈا موضع علاقہ سارا کھانا دا جاندا پیا ہے۔ اصا آپ ڈٹھے ساڈا 335 گھر ساڈے کئی اٹھی گئے کئی بیٹھے ہیں، وہ ڈھا لگی کھلی ہے، ساڈی امداد کیوں نہیں کر دینے ساڈی؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے بستی خیرودے میں، اور صرف دریا کا کٹاؤ اگر کہیں جاری ہے تو صرف بستی خیرودے میں جاری ہے۔ یہاں سے 20-30 گھر آلریڈی گر چکے ہیں اسی کٹاؤ میں، اور مسلسل کٹاؤ جاری ہے سر۔ اگر یہ کٹاؤ اس طرح جاری رہا تو 2-3 مہینے تک یہ نہر احمد آباد بھی نہیں رہے گی، اور شاید بس وہ میٹل روڈ جو ایک ہی ملاتی ہے اپنا جمال پور سے اس کو ہیڈ اسلام کو، تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے یہ ہمیں اس چیز سے بچایا جائے، دریا کے کٹاؤ سے بچایا جائے۔ اہل علاقہ جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور حکام بالا سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر دریائی کٹاؤ کو نہ روکا گیا تو میٹل روڈ اور دیگر بجلی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، لہذا جلد از جلد حکومت جو ہے وہ فوری طور پر نوٹس لے کر اس دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ عبدالرشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان کی بیشتر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں، روزانہ سفر کرنے والے لاکھوں مسافر ہونے لگے خوار۔
बीसीजी चौक का बहावलपुर बाईपास सड़क 2 हुकूमतें गुजर जाने के बाद भी ना बन सकी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही राना बिलाल से। जी बिलाल, शहरियों का क्या कहना है, बताइएगा। मुल्तान शहर की बेशतर सड़कें जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अगर हम बात करते हैं बीसीजी चौक से बहावलपुर बाईपास चौक तक रोड की, तो ये तकरीबन 2 हुकूमतें गुजर जाने के बावजूद जो है वो इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। तकरीबन 5 साल पहले इस रोड को जो है वो सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ा गया था, लेकिन सीवरेज लाइन डल चुकी है। लेकिन 2 साल से सीवरेज लाइन डली हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस रोड को मुकम्मल नहीं किया जा सका। मेरा कैमरामैन जैन अहमद अगर आपको इस रोड की हालत दिखा सके, तो ये इस वक्त हम बीसीजी चौक पर मौजूद हैं। ये बीसीजी चौक से लेकर बहावलपुर बाईपास चौक तक तकरीबन आधे किलोमीटर का ये रोड बनता है। तकरीबन सारा रोड जो है वो इसी तरह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज जो है इस रोड पर हादसा मामूल बन चुके हैं और इसके साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। खास तौर पर जिन लोगों के यहाँ पर कारोबार थे, जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें थी, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या फिर जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो लोग यहाँ से गुजर कर रोज़ाना जो है वो बीसीजी चौक से बहावलपुर बाईपास तक जो है वो सफ़र करते हैं, वो अक्सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मट्टी गर्दो गुबार उड़ने की वजह से लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ के दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं, जो कई बार जो है वो इस रोड पर एहतजाज भी कर चुके हैं इंतज़ामिया के खिलाफ कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। लेकिन ना ही तो इनकी एहतजाज की सुनवाई होती है और ना ही जो है रोड को मुकम्मल किया जाता है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, यहाँ के जो है वो मार्केट के सदर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? कई बार जो है वो आप खुद भी यहाँ पर एहतजाज कर चुके हैं, मीडिया भी यहाँ पर कवरेज कर चुकी है, रोड को लेकिन मुकम्मल नहीं किया जा सका। पहले सीवरेज का जो मंसूबे के तहत तोड़ी गई थी, वो तकरीबन 1.5 साल लोगों को परेशानी रही। अब जो है वो इसी तरह रोड के ऊपर जो है वो कंक्रीट डाल दी गई है, लेकिन कारपेट रोड नहीं बनाया गया। क्या कहना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजेंड कॉलेज ये साथ ही है, हमारे लीजेंड कॉलेज के पास से सर्विस रोड भी है, रोड खुला भी है और चौक के पास आगे रोड तंग हो रहा है। अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, चंद दिनों के बाद जो है ना स्कूल खुल जाएंगे। यहाँ रोज ब्लॉकेज होती है। 11 22 की भी जो है ना यहाँ से जो सर्विस है वो भी यही साथ ही उनका दफ्तर है, लेकिन वो भी जो है ना यहाँ छुट्टी के टाइम खास तौर पे तंग होते हैं। तो हमें नोटिस भी दिए हुए हैं कि रोड जो है ना खुले होने, और रोड जो है ना खुले होने की वजह से दुकानें गिरनी हैं, वो नोटिस भी जारी हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो बिक भी नहीं पा रही क्योंकि वो गवर्नमेंट ने लेनी है। तो रोड जो है ना जल्द अज जल्द ये खुला भी किया जाए कि यहाँ जो है ना बच्चों के जो आने जाने का प्रॉब्लम है। स्कूल कॉलेजेस, यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है बच्चियों का भी, और टेक्नोलॉजी कॉलेज भी है बच्चों का भी। तो जब छुट्टी होती है तो यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज की वजह से बच्चे लेट भी हो रहे हैं और 11 22 की सर्विस भी जो है ना वो भी तंग हो रही है। तो ये रोड जो है ना तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, सेवरेज के नाम पे इन्होंने अखोड़ा था, अखोड़ के फिर यूं ही छोड़ दिया। लिंक रोड जो है वो उन्होंने सुनारे मिलके शाद शम्स कॉलोनी की तरह बना दिया। ये जो नोटिस जारी हुए हैं दुकानदारों को, ये वाली साइड से जो है वो दुकानदारों को नोटिस जारी, कितने फुट तक जो है वो दुकानें भी मजीद तोड़ी जाएंगी रोड को? हाँ जी, तकरीबन जो है ना 18 फुट जो है ना दोनों तरफ से जाएगी। रोड जब लिया जाता है तो दोनों तरफ से लिया जाता है। तो इस वक्त जो अगर आप पटवारी तहसीलदार के पास जाएं तो वो उन्होंने रेड जोन किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट ने लेना है, ना वो प्रॉपर्टी बिक पा रही है ना ही रोड खुला हुआ जा रहा है। तो मेरे कैमरामैन जो रूई चैनल के हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो आए और हमारी ये जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए वो तशरीफ लाए। तो हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरी दुकान पे भी और इस जो प्लाजा है उधर भी निशानात लगे हुए हैं, अगर वो हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये अब के नहीं लगे हुए, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और यहाँ MDA को जो है ना पैसे भी दे चुकी है गवर्नमेंट, तो फिर ये जो है ना रोड क्यों नहीं खुला किया जा रहा? जल्द अज जल्द वो इंतजामिया की जानिब से जो है वो पैसे भी दे दिए जा चुके हैं। इस रोड को बीसीजी चौक से लेकर बहावलपुर बाईपास तक जो है वो रोड को खुला किया जाना था। तकरीबन 18 फीट जो है वो दोनों साइड से जो है वो रोड को काटा जाना था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको भी जो है वो नोटिस बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ से दुकानों को जो है वो तोड़ा जाएगा और रोड को खुला किया जाएगा। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद जो है वो ना ही तो
यहाँ दुकानदारों को पैसे दिए गए हैं इस हवाले से कि इस दुकानों को जो है वो यहाँ से हटाया जाए, कि इस रोड को खुला किया जाना है। और ना ही तो ये जो सीवरेज मंसूबे के तहत 5 साल पहले जो है वो रोड को तोड़ा गया था सीवरेज लाइन डालने के लिए, इसको मुकम्मल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बात भी आपने यहाँ के इलाका मकीनों की सुनी, यहाँ के दुकानदारों की। एक तो यहाँ से रेस्क्यू 1122 का यहाँ करीब ही दफ्तर है, जब रेस्क्यू 1122 की यहाँ से गाड़ी गुजर कर जाती है उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा, छुट्टी के वक्त बच्चों को जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो बीसीजी चौक पर जो है वो ट्रैफिक जैम रहती है, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं, लोगों को गुजरते हुए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मट्टी गर्दो गुबार की वजह से लोग सांस की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ना ही तो कमिश्नर मुल्तान को इस चीज़ की फिक्र है और ना ही डीसी मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान को इस हवाले से जो है वो कोई फिक्र नज़र आती है कि इस रोड को जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, या जो दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं, जो एमडीए की तरफ से एमडीए को पैसे भी दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि दुकानदारों को पैसे दिए जाएं लिंक रोड बनाने के लिए, ना ही तो अभी दुकानदारों को वो पैसे दिए जा चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले। सबसे पहले शुक्रिया। तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, इसको सीवरेज के नाम से खोदा गया था। तकरीबन 4.25 अरब रुपए का इसको टेंडर मंजूर करवाया गया था, जिसमें रोड का खुला होना और इसको बनाना था। रोड तो खैर उन्होंने बनाया नहीं, जिस तरह इन्होंने इसको बनाया है चलते हुए पानी में इन्होंने पाइप डाले हैं, उसके बावजूद ये पास ही तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 हज़ार फीट के कदम के ऊपर है सेनेटर साहब का घर है, उसके आगे चले जाएं साहब का मुशीर है, उसके आगे चले जाएं साहब का अपना वजीर है, सूबाई वजीर जेल खाना जात है, साथ ही गिलानी साहब का घर है, जैन कुरैशी साहब है, दूसरी बार वो मुंतखब, तीसरी बार मुंतखब हुए हैं, तवज्जो नहीं देते। असल में कोताही हमारी है, हम जिनको लाते हैं अपने वोटों से नहीं लाते, जब हम अपने वोटों से लाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो काम भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी फिलहाल कोई भी ऐसे नोटिस नहीं आए, ना एमडीए को पैसे दिए गए, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम। उसके बावजूद पीछे से आ रहा है 120 फुट, इन्होंने कहा था कि हम आपको 15-15 फीट यहाँ से, हमारा ये मुतालबा था कि जैसे 120 आ रहा है पीछे से आप 120 करें, हमें 15-15 न कर। फिर अब नई गवर्नमेंट आएगी 5 साल बाद फिर कहेगी कि फिर इसको कटिंग करेंगे। जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में नया सिक्योरिटी सिस्टम नाफिज, अस्पताल इंतजामिया और वाईडीए के इश्तराक से नए सिक्योरिटी सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। एमएस डॉक्टर आमिर ने फीता काटकर इफ्तिताह किया। मजीद जान लेते ताहिर जोई से। जी ताहिर। जी, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में सिक्योरिटी मैकेनिज्म तब्दील किया गया है। अब जो दाखिला वाली गाड़ियां होंगी और जो एग्जिट वाली गाड़ियां होंगी उनको टोकन दिया जाएगा और टोकन के जरिए ही उनका जो दाखिला होगा और एग्जिट होगा वो मुमकिन हो सकेगा। डीएसपी सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएस भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। असल में बीवीएस बहुत बड़ा सेटअप है और यहाँ डेली बेसिस पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फुटफॉल है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली बेसिस पे शिकायत आ रही थी और मोटरसाइकिल वगैरह चोरी हो रहे थे, गाड़ियों के हवाले से थी और इसके अलावा घरों में मेडिकल कॉलोनी से चोरियों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी। तो उसको सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए यहाँ हमने स्टार्ट किया है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेकर मुश्तरका तौर पे ये एक स्टार्ट किया गया कि जो भी शख्स एंटर होगा वो टोकन के ज़रिए होगा। इस तरीके से एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो है सिस्टम वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ तावन करें, इंशाल्लाह ताला जो भी मुश्किलात प्रॉब्लम्स आएंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ हल करते जाएंगे। जो शहरी हैं, जो यहाँ पे मरीज आ रहे हैं, लवाहिकीन आ रहे हैं, उनके लिए भी यही कहा गया है कि वो कंप्लाई करें ताकि जो सिक्योरिटी का निज़ाम है हॉस्पिटल का वो मजीद सिक्योर और बेहतर हो सके। जी ताहिर जोई, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतवक्की आमद, पुलिस और इंतजामिया में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मियांवाली के जनरल अस्पताल में मरीजों का दाखिला बंद कर दिया। मरीजों के लवाहिकीन और लीगी कारकुनान के साथ मुबैना बदतमीजी, मियांवाली पुलिस ने अस्पताल के दरवाजे भी बंद कर दिए। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतवक्की आमद, पुलिस और इंतजामिया में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मियांवाली के जनरल अस्पताल में मरीजों का दाखिला भी बंद कर दिया। मरीजों के लवाहिकीन और लीगी कारकुनान के साथ मुबैना बदतमीजी, मियांवाली पुलिस ने अस्पताल के दरवाजे भी बंद कर दिए। आपको अहम खबर से आगाह करें, मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज की मुतवक्के आमद, पुलिस और इंतजामिया में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मियांवाली के जनरल अस्पताल में मरीजों का दाखिला भी बंद कर दिया। मरीजों के लवाहकीन और लीगी कारकुनान के साथ मुबैना बदतमीजी। मियांवाली पुलिस ने अस्पताल के दरवाजे भी बंद कर दिए। पुलिस शहरियों को परेशान करने लगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मियांवाली में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतवक्के आमद, पुलिस और इंतजामिया में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मियांवाली के जनरल अस्पताल में मरीजों का दाखिला बंद कर दिया। मरीजों के लवाहकीन और लीगी कारकुनान के साथ मुबैना बदतमीजी। मियांवाली पुलिस ने अस्पताल के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, आज वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियांवाली का मुतवक्को दौरा है और डीसी ऑफिस ज़राए के मुताबिक उन्होंने जनरल हॉस्पिटल का दौरा करना है, डीएचसी अस्पताल का दौरा, और डीसी ऑफिस में उन्होंने एक आला सतही मीटिंग को चेयर करना है। सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है कि मियांवाली पुलिस का जो रवैया है इस वक्त मियांवाली के शहरियों के साथ इंतहाई नारवा है। अगर हम बात करें जनरल अस्पताल की, तो उसका जो मेन गेट है जहां से मरीज इलाज के लिए दाखिल होते हैं उसको पुलिस की जाने से बंद कर दिया गया है। सहाफियों के साथ इंतहाई बदतमीजी की जा रही है। लीगी कारकुनान जो है उनको मेन गेट पर रोक दिया गया है और उसके अलावा पुलिस जो है मुख्तलिफ मियांवाली के चौक चौराहों को बंद कर चुकी है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को तंग किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि ज़राए के मुताबिक 1:20 पर सीएम पंजाब ने मियांवाली में लैंड करना है और उसके बाद ये अपने तमाम जो उनके दौरे हैं वो करेंगी। लेकिन इससे कबल ही मियांवाली के शहरियों के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा जो है आजाब बन चुका है। मुख्तलिफ रूट को बंद कर दिया गया है, रस्तों को बंद कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि मेन गेट पर अगर कोई मरीज भी जाता है तो उसको भी अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले जो बिलखुसूस मियांवाली पुलिस है वो सहाफियों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं और उनके साथ लीगी कारकुनान भी मौजूद है, उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही है। जबकि लीगी कारकुनान की जानिब से और सहाफियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें इस बात का इल्म है कि सीएम पंजाब के साथ उनका अपना मीडिया होगा और पीटीवी ही इसको कवर करती है। लोकल और मकामी मीडिया को सीएम की कवरेज नहीं करने दी जाती। जब सीएम साहब यहाँ पे पहुंचेंगी तो ये तमाम लोग जो हैं साइड हो जाएंगे और अंदर दाखिल नहीं होंगे जैसे सिक्योरिटी कहेगी या जैसे ही सीएम पंजाब का जो स्क्वाड है वो कहेगा उनकी बात को फॉलो किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अपनी चौधराहट पर उतरी हुई है, लोगों के साथ बदतमीजी कर रही है और ये कहना गलत ना होगा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा मियांवाली के शहरियों को लिए इस वक्त आजाद बना हुआ है। जी अख्तर, इस सारे मामले में मरीजों का तो कोई कसूर नहीं है, ऐसे में अस्पताल इंतजामिया की जानिब से क्या बताया जा रहा है? पुलिस के साथ कोई मामला तय हुए? जी, अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई है, एमएस डॉक्टर फारूक साहब से हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि किसी भी मरीज के दाखिले पर पाबंदी नहीं है क्योंकि अस्पताल का काम और डॉक्टर का काम लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करना है, ना कि उन पर दरवाजे बंद करने हैं। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही कि पुलिस को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 2 घंटे कबल ही पुलिस ने दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और मरीजों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि एक शख्स ने यह भी कहने की कोशिश की है कि मैं इलाज की खातिर अंदर जा रहा हूं, मैंने डॉक्टर से मिलना है, मैंने अपना चेकअप करवाना है। लेकिन वहां पे खड़े हुए डीएसपी सर्कल सदर जो मियांवाली हैं शेख काशिम मसूद और उसके बाद एसएचओ थाना सिटी राना बाबर, एसएचओ सदर इरफान गुजर, ये तीनों लोग जो हैं अपनी जानिब से इंतहाई बदतमीजाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जी अख्तर, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब की आमद कब तक मुतवक्के है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कारकुनान मुंतशिर नहीं होंगे तो क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मियांवाली के मकामी सियासतदान हैं जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ भी हमने राब्ता किया है, राब्ता करने की कोशिश की जा रही है और कुछ मकामी सियासतदानों से हमारी बात हुई है और उनके नॉलेज में ये बात लाई गई है कि पुलिस का लीगी कारकुनान के साथ ये रवैया है और इसके हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं। तो उनकी जाने से ये कहा जा रहा है कि हम पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनसे इस सवाल से बात करते हैं। पुलिस का ये रवैया किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है
और ये भी सियासतदानों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नोटिस में लाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह नवानी उनकी क़यादत में और उनकी निगरानी में ही ये पुलिस रवैया इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि उनके हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं, क्योंकि उन्होंने सहाफियों के खिलाफ FIR भी दी हैं, सहाफियों के साथ उन्होंने भी नारवा सलूक रवा रखा हुआ है यहाँ पे, और चंद एक मंजूर नजर लोग जो हैं वो उनको अपने ऑफिस में भी बिठाते हैं, उनके साथ चलते भी हैं। इस हवाले से मियां वाली के शहरी भी परेशान है और सहाफी भी जो है वो मुतज़लज़ल ऐमान है, क्योंकि उनके हवाले से बहुत सारी उनको परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। जी, बहावलपुर में महकमा तालीम जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने को तैयार। तहसील की सतह पर जश्न आज़ादी से मुतल्लिका तकरीरी मुकाबले जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाएंगे। महकमा तालीम बहावलपुर जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने के लिए तैयार। तहसील सतह पर जश्न आज़ादी की तकरीरी मुकाबले जारी हैं। 14 अगस्त को मरकजी तकरीब में इनामात दिए जाएंगे। चौधरी अकरम का ऐसा कहना है। हर तालिब इल्म से एक पौधा भी लगवाया जा रहा है। पिछले साल भी 1,67,000 पौधे लगवाए गए थे। चीफ ऑफिसर तालीम का ऐसा कहना है।